कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। व्यासं ततो जयी मुदीरये। ओम काशी पार्वती प्रयाग मथुरा अयोध्या गयावंतिका माया पुष्कर कांचीकोप गिरगिरी श्रीशैल विद्यांगय नेते तारे तुम भवन्ति कुशला यस्य प्रसादं विना तम वंदे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थ सिद्धि प्रदा। Very good morning to all of you. I pay special regards to the very respected Professor D.S. Negi sir and Madam Mrs. Pushpa Negi, retired headmistress. Today on this auspicious occasion of career counseling and guidance program, our very respected, hard-working, honest, combative and dedicated to education, Chief Guest Professor D.S. Negi sir, my combative and honest senior lecturer Sri L.D. Bomalaji, lecturer physics, the most senior lecturer in the terms of age Sri C.M. Ratodi, lecturer political science, all learned teacher colleagues, learned female teacher sisters, official staffs and all my dear students. Today is a very happy moment for the school. It is a very proud day of our school. It is a matter of great joy that not only in Central Garhwal University, Srinagar Garhwal, but also in entire state and country, renowned scholar Professor D.S. Negi sir has been present in our school. Professor D.S. Negi sir are well-renowned mathematician in the subject of mathematics. You are visiting various schools and encouraging the students free of cost makes us proud. On behalf of the entire school family, I thank you and thank you very much. I thank you from bottom of my heart for giving us your precious time. At last, I would like to say the entire school family, you all are special. Clap loudly in honor of our chief guest, Professor D.S. Negi sir and Madam Pushpa Negi. Yes, go clap. Now, in brief, I am presenting Professor D.S. Negi sir's achievements in front of you. Please listen carefully. A brief biodata of Professor D.S. Negi sir. Name Dr. Darwan Singh Negi. Date of birth 5 December 1956. Educational qualification MSc, DPhil. Teaching experience UG and PG classes
34 years, PhD, guiding experience 25 years, teaching specialization, differential geometry, mechanics, fluid dynamics, biomechanics and mathematical modeling. Research field, differential geometry, fluid dynamics and biomechanics. Research scholar, guided 7 research publication in national and international journals, 36 books published, 1 worked as head of convener department of mathematics 3 years, worked as dean School of Science from date 1 November 2019 to 29 February 2020. Worked as member of Academic Council and Board of Studies 5 years, Chief of Employment Bureau at HNB Garhwal University, Srinagar 2 years, number of lectures delivered in last 10 years on neuro-linguistic programming in different conference, seminars, workshops, universities, training centers, colleges, organizations, schools and social platforms. थैंक यू वेरी मच। पुनः मैं प्रोफेसर नेगी सर का और मैडम का अपने संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बच्चों को इनकरेजिंग करने के लिए हमारे विद्यालय में आप उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं हृदय की अनंत गहराई से आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वक्तव्य रखना है, आपका दूसरे विद्यालय में भी कार्यक्रम है, इसलिए वो क्षण वो पल हमारे बीच अब आ चुका है जब हम सम्मानित प्रोफेसर नेगी जी को सुनेंगे और उनका जो युवाओं के लिए मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन को हम सब प्राप्त करेंगे, उससे प्रेरित होंगे। मैं सम्मानित प्रोफेसर नेगी जी को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आपके आशीर्वचनों के वास्ते हमें प्रदान करें। प्रोफेसर नेगी, आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं? ओके भाई, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। बहुत बार सुना होगा आपने और इसका अर्थ भी जानते होंगे, केवल मैं आपको याद दिला रहा हूँ। इसका मीनिंग होता है जो भी व्यक्ति मन को अपने वश में कर लेता है वो विजेता होता है, और जो मन को वश में नहीं कर पाता है वो मेहनत तो करता है परंतु उसको पूर्ण सफलता नहीं मिलती। इस बात को चरितार्थ करने के लिए आज मैं आपके विद्यालय में करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस के तत्वाधान में उपस्थित होने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक बात जो आपके इस प्रांगण में, इस हॉल में हम सब के लिए मां सरस्वती के वरदान के रूप में आएगा, वो हम सबको के लिए सुरक्षित है। उम्मीद करता हूँ आज हम यहाँ पर अपने जीवन का सर्वोत्तम समझने, सुनने और उसका उपयोग करने की आज हमको अपॉर्चुनिटी मिली है और हम इसको समझने के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी हो चुके हैं। आपने सुन लिया? सुना आपने? क्या मेरी आवाज ठीक से पहुंच पा रही है? अगर हाँ है तो जोर से बोलिए, राइट? क्योंकि मैं आपके फेसेस को देखूंगा, आपकी नजर कहाँ है, आपके दिमाग से क्या चल रहा है, और फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा आप कहाँ थे, कहाँ ध्यान था आपका, किससे तैयार। ये है मन का विज्ञान। ये तो मैं अभी जो बातें कर रहा था एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए कर रहा था, यानी कि मैं और आप यहाँ पर फिट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? मेरी तरफ से तो 100% में फिट हो। आपकी तरफ से आप भी फिट हैं? एक बात है, जब आप हाँ बोल देते मैंने सुना है कि उससे पीछे बिल्कुल नहीं रखें। सही
बात है? मैंने सही सुना ऑब्जेक्शन है? फिर सबसे पहली बात होगी वो क्यों होगी, बड़े ध्यान से देखिए। अब देर में क्या होगा, जैसे मैं बोलता रहूंगा तो हो सकता है मेरी आवाज थोड़ा सा बढ़ता जाए, बाय द वे, या ये लाइट चले जाए, तो तब आपको ध्यान रखना है मेरे आंखों पे मैं क्या आंखें होती है, मेरे हाथ, बॉडी लैंग्वेज, उतार चढ़ाव और पूरा का पूरा ये भी बोलने की कोशिश करेंगे, इसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी पूरी ज्ञान इंद्रियों का आज यहाँ पर उपयोग करना है, तभी जाके हम इस प्रोग्राम से समझ में आ गया? मैं करीब करीब 1 घंटा लेने जा रहा हूँ आपका, तैयार है आप? ओके, अब ये तो था एक एनवायरमेंट बनाने वाला जिसमें आप अपने आप को, सुविधाओं के युग में जब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं आ चुकी होंगी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जमाना होगा और हम जो चाहें उसको सिंपल एक उंगली से बटन दबा करके वो सब कुछ हमें प्राप्त हो चुका होगा, ऐसे युग में हम जी रहे हैं। और हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं आ चुकी होंगी और इन सुविधाओं के बीच में अब हमारी नजर भी अब बड़ा काम करने की बन चुकी होगी। मैं भी कुछ जैसा काम कर सकूंगा या सकूंगी, बड़ा सोच हमारे अंदर आ चुका होगा, मेरा सपना भी बढ़ चुका होगा। ये हमारे अंदर जब निहित हो गया होगा, वास करने लग गया होगा जमाने की वजह से, तो सोचो हमारा वो एक मोमेंट, एक मिनट कितना माने रखता है। एक मिनट क्या हो सकता है 1 मिनट के अंदर इस भागते हुए जिंदगी में, जबकि हम सभी भागना चाहते हैं, जल्दी से प्राप्त करना चाहते हैं। बताइए वो 1 मिनट क्या हो सकता है जिंदगी का 1 मिनट? हम सब जब भागा दौड़ी की जिंदगी में जी रहे हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और बड़ा काम करना चाहते हैं, सोचिए 1 मिनट कितना बड़ा हो सकता है। और 1 सेकंड क्या माने लगता है। और जब हम इसको पकड़ेंगे, अब ये पक्की बात हो गई है, जिसका अर्थ हमारे माइंड के अंदर भी होता है। आज इस पर बहुत करीब से जानने की कोशिश है। माइंड, ठीक है? मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? ओके, मैं आपके इस विद्यालय में, जो कि मेरा भी बन चुका है, मैं भी विद्यार्थी हूँ, परंतु मैं जिस काम को कर रहा हूँ, आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं अभी आपकी उम्र के हिसाब से, और मेरी उम्र के हिसाब से मैं अब व्यक्तियों के अंदर की क्षमताओं को पढ़ता हूँ। कितना बड़ा काम कर सकता है, क्या टैलेंट है, कितना बड़ा काम कर सकता है, कैसे कर रहा होगा कोई बड़ा व्यक्ति काम, कैसे अपनी क्षमताओं का दोहन करके, अपनी क्षमताओं का उपयोग करके शिक्षा के जरिए, शिक्षा का उपयोग करते हुए सब्जेक्ट जो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, कॉलेज, टीचर्स, बुक्स और पेरेंट्स जब इतना हमारा कोऑपरेशन कर रहे होंगे, तो हमारे अंदर की वो मन की शक्ति या हमारे अंदर का वो टैलेंट, प्रतिभा, हमारे अंदर का वो जीनियस, खास व्यक्ति जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो कैसे पनप सकता है, उस पर मैं अध्ययन करता हूं, उसका विद्यार्थी। क्लियर हो गया? आप किसके विद्यार्थी हैं, किस सब्जेक्ट के विद्यार्थी बताइए, ये तो मेरी बात है, बोल करके बताइए। आप किस सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं? और झुकना नहीं चाहिए, कोई विषय कम और ज्यादा नहीं होता, प्लीज ध्यान रखिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसको खुल करके बोलिए, वो इतिहास, भूगोल, गणित,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। तबीयत से बोलिए, आज खुल करके बोलिए आप, और कल देखिए कल का दिन कितना सुहावना है। क्योंकि हम होल्ड कर रहे होते हैं, उसको बोल नहीं पाते हैं, हम उसको देख नहीं पाते, आजमा नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे अंदर का वो खास व्यक्ति, प्रतिभा, जो बहुत बड़ा काम कर सकता है, जब हम बोलते नहीं हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो बेचारा दब जाता है हमारे। आज पूरी प्रैक्टिस होगी बोलते, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही तो हम बनते हैं। आया ना? है या नहीं? तो एक प्रश्न करता हूं आपसे, क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आप उसको जानते हैं, जिसने सोचा नहीं, बोला नहीं, उसको जाना नहीं, जो मानता है मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब अच्छे हैं, मैं तो, कभी अगर कोई ये सोचता है तो मैं आज आपको पक्का करना चाहता हूं, तो ध्यान दें, हम सबके अंदर एक बहुत काबिल इंसान हमारे अंदर छुपा हुआ है। वो इंसान जो कि बहुत बड़ा काम, खास अलग से काम कर सकता है, दूसरे जैसा नहीं, अपने जैसा बहुत बड़ा काम कर सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम उसको खुराक नहीं देते हैं, उसको टाइम नहीं देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान सिर्फ बाहर इधर उधर भागा दौड़ी, उसके थोड़े हाथ हैं, मेरा तो कुछ नहीं, और यही जब हम करते रहते, ध्यान बाहर 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 बाहर, ये सच्चाई है। हमारे अंदर का वो ब्यूटीफुल पावरफुल व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, उस बेचारे को हम खुराक नहीं देते। खुराक का मतलब है उसको हम वहां से, जहां से उसको खुराक नहीं मिलती, टीचर्स का पढ़ाया हुआ, ध्यान से समझ करके, उसका उपयोग करके, जब हम उसको खुराक नहीं देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसको ठीक से खुराक नहीं दे पाते। ये उसकी खुराक है, जब आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ बताया जा रहा हो, पूरी इंद्रियों को, ध्यान को, सुनने को, समझने को, देखने को, फीलिंग के करें, तब उसके अंदर ठीक ठीक खुराक मिलती है। ये खुराक है, उसको समझ में आ गया? अब चलते हैं, नया वर्जन आ गया है। पहले तो था ताकि मैं नौकरी लग जाऊं, मैं अपने घर का अपना गुजारा कर सकूं, अच्छी जिंदगी जी सकूं, ये था ना? ये सुना है आपने? यस सर। यही सुना कि नहीं? यस सर। ओके, अब एक नया वर्जन आज से डालिए। जब हम ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो हमारे अंदर का जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, उसको हम नहीं खुराक देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, तो वो पनप है। समझ में आ गया? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बताइए आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? बताइए, बताइए ना, बोलिए ना जोर से। इसके लिए, अपने लिए। ठीक वैसे जैसे हम 1 मिनट सांस लेंगे तो क्या परेशानी हो जाती है। एग्जैक्टली प्यारे बच्चों, अगर आपको बड़ा काम करना है इस जिंदगी में, जो कि आपका ये पूरा जमाना आह्वान कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, और बढ़ सकते हैं, पर जब हम अपनी इंद्रियों का, अपने दिमाग का, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि हम ध्यान से काम नहीं करते हैं, तो उस भागने वाले, बड़े काम करने वाले व्यक्ति को जमाने के बीच में फिर नहीं पाते हैं हम, और बार बार टेंशन होता है, खतरा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और हम परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, क्योंकि हमने उसको खुराक ठीक से नहीं। तो पढ़ाई अच्छी करना एक नई खुराक है। क्या है? खुराक है। आज से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, कम लगेगा। पढ़ाते समय जबकि इतना बढ़िया पढ़ाई होती है इस कॉलेज में, अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ लेना चाहिए कि मैं
बोले जाइए अपने अंदर के उस महान व्यक्ति के साथ में अन्याय कर रहा हूं, अन्याय कर रहा हूं, जोर से बोलिए कर रहा हूं। अब ये कम नहीं होना चाहिए। कोई दुनिया में कोई हमको नहीं रोकता है बड़े बड़े कामों से। कभी देखा बच्चों आपने क्या बड़ा काम करना चाहते हो, बड़ा सपना देखना चाहते हो और काम करना चाहते हो, सच बताना प्लीज। क्या कोई व्यक्ति ऐसा आया जिसने बोल नहीं 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 सफल नहीं होना है, कम पढ़ना है, नहीं 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 आगे मत पढ़ो, आया ना आप ही कर देगा। उनके अंदर क्या चल रहा है? ये अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, तैयार हो? सबसे पहले ठीक है ऐसा ये इसका नियम, ये इसका पक्का नियम है। जब आपने बोला कि मेरे अंदर खुराक आ रही है तो खुराक ऐसे करके लेंगे, ऐसे करके लेंगे खुराक, ऐसे करके लेंगे। कैसे लेंगे? शुद्ध दवाई कैसे आएगी? हमारा ब्लड का फ्लो तब करेक्ट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं थोड़ी देर बाय द वे 16 नंबर बाउंड को हेल्प कर लीजिएगा क्योंकि मैंने गणित का छात्र रहा। जब हम ऐसा बैठते हैं तो हमारे अंदर जब भी पढ़ाई में बैठे हैं तो किसी पूजा से कम न समझे, किसी थोड़ा सा इधर नहीं है तो वो लोग मेरे से छूट जाए, भगवान मेरे ऊपर जो बारिश कर दिया आशीर्वाद तो वो लोग मुझे मिले, पता नहीं कब क्या कह देंगे। उससे भी बड़ी क्लियर है? एक बात कहने के लिए आपको तैयार करा था, ऐसे ही बैठना है अब हमेशा पढ़ाई। अब देखिए कैसे पढ़ाई, इसकी गारंटी में पूरी गारंटी मैं आपको आज के संबंध में बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर है वो बताने की कोशिश करूंगा। अब इससे कम नहीं होगी प्लीज। अब आप आंखें बंद करेंगे, केवल आंखें बंद करेंगे और मैं काम दे रहा हूँ आप लोगों को जिसमें कि केवल आपने सुनना है और उसको महसूस उसको बताना है अपने आप को। आप अपने जीवन की जो सबसे सुखद घटना है, सबसे प्रेरित करने वाली घटना है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, उस घटना को याद करें। कहाँ पर हुई ये बात, कैसे हुई, कौन कौन लोग थे वहाँ पर जब आप उसको कर रहे थे। माना कि वो कोई अवार्ड, कोई इनाम, कोई शाबाशी, कोई हाथ खड़ा उठा, तालियां बजी आपके लिए कहीं, वहाँ पर कौन कौन लोग थे, उस चित्र को याद करिए, वातावरण क्या था, उसको याद करिए प्लीज। जिंदगी का वो सबसे खास मौका, खुशी का, आनंद का, उत्साहित करने वाला, याद करें उसे। कभी भी आप किसी बड़े से बड़े काम को, कठिन से कठिन काम को करने जा रहे हैं जिसको आपने कभी पहले नहीं किया, जो आपको लगता है कि पहली बार कर रहा हूं मैं या कर रही हूँ, ये कठिन लग रहा है मेरे को, साधारण भाषा में मेरा रिक्वेस्ट होगा आप पहले यही काम कर लीजिए, यही काम कर लीजिए। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, कठिन सवाल आ गया, परीक्षा में टफ कंपटीशन है और वो परीक्षा देने हम जा रहे हैं, तो सिर्फ थोड़ी देर, 1 मिनट सिर्फ आंखें बंद करनी है और वो चित्र याद करना है जब आपने सबसे अच्छा उत्तर दिया हो, जब आपको शाबाशी मिली हो, जैसे मैं भी कह रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा करने से बायोलॉजी के अनुसार, जीव विज्ञान के अनुसार, बायोकेमिस्ट्री के अनुसार, ये तमाम हजारों करोड़ों अरबों हमारे अंदर पिक्चर्स होती हैं, हमारी पुरानी यादों की पिक्चर हमारे दिमाग में होती हैं, पर जब हम इसको टटोलने की कोशिश करते हैं, वो सबसे अच्छी पिक्चर को, सबसे अच्छी बात को, खुशी वाला, ये सब के सब हमारे, ध्यान दीजिए इधर, हमारे यहाँ पर न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन में, फ्रंटल लोब में तैयार हो जाती हैं। और जब ये तैयार हो जाती है ताजी एक्टिव करने वाली, तो अब यहाँ पर जब ये तैयार हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आने के बाद वो हमारे
यहाँ पीछे होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वहाँ जाती हैं और यहाँ पर जब हो जाते हैं तो हमारे यहाँ से वो हमारी पूरे शरीर के अंदर आगे बढ़ जाती हैं, वो ऑर्डर आगे बढ़ जाता है और हमारा शरीर ठीक वैसे का। फिर से सुनिए, मैं ये प्रयोग करवा रहा हूँ, ये सारे प्रयोग करा रहा हूँ, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, यही टेक्निक्स अपना रहा हूँ मैं। क्या बोला मैंने? जब कभी भी किसी काम को करो और लगता है आपको कठिन है, थोड़ा सा मैंने किया नहीं, और साधारण रूप में तो हमें घबराहट हो जाती है, होती है ना? ऐसा तो नहीं मुझे होती है, आपको अगर होती है तो ध्यान दें। जो भी काम कर रहे हो आप पहले आंखें बंद और एक अच्छा चित्र बनाइए अपने दिमाग के अंदर, अच्छा वाला जिसके आपको ताकत आती हो, खुशी होती हो, उसको बनाइए 1 मिनट के लिए। जब यहाँ पर बन जाता है तो फिर दोबारा सुन लीजिए, यद्यपि इतना साइंस जानने की आपको बहुत जरूरत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बच्चों के इंटरमीडिएट हाई स्कूल वालों को समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पर एक चित्र बन जाता है फ्रंटल लोब में, क्लियर चित्र बन जाता है खुशी का, तो यहाँ से वो सीधे इम्पल्सेस न्यूरो सर्किट्स बनते हैं जो कि हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर, हमारे ब्रेन के सेंटर में जाता है और वहाँ से वो आगे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, मसल्स, टिश्यूज, ग्लैंड्स, और हमारा व्यवहार, हमारी बॉडी के अंदर वो खुशी पैदा हो जाती थी। और जहाँ पहले घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे कठिन है, वो अब हो सकता है। तो क्या करना है प्यारे बच्चों? आंखें, और उसमें वो चीज जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेरणा से आपको ओत प्रोत करती है, याद करना है। एक तो मेमोरी पावर भी बढ़ जाएगी, इज इट और नॉट? अगला क्या होगा? हम, ध्यान दो इधर, हम कॉन्सेंट्रेट करना जानेंगे। अब ये थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं बता रहा हूं, हमारे दिमाग के अंदर अरबों खरबों पिक्चर हैं, अलग अलग लोगों की, अलग सिचुएशन की, परिस्थितियों की, अलग अलग घटनाओं की अलग अलग चित्र बने हुए हैं हमारे दिमाग के अंदर, निहित हैं, अंदर हैं। कुछ तो परेशान करने वाली होती है, कुछ अच्छी पिक्चर होती है, कुछ गंदी होती है, कुछ तोड़ने वाली होती है, तो कुछ खुशी देने वाली होती है ना? सही है, सुन लो। तो हम चाहते हैं कि उनमें से वो पिक्चर आगे, करोड़ों अरबों पिक्चर में से वो पिक्चर आगे लाई जाए, जिससे कि मेरा ये काम बन जाए। तो बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें आंखें बंद करनी होंगी और फिर उसको याद करना होगा। और जब ये छप जाएगा तो हमने हजारों, लाखों, करोड़ों में पिक्चर्स में से एक पिक्चर छांटने की शक्ति अपने अंदर आ गया। अब ध्यान दीजिए, हाँ क्या बोला मैंने? फिर से बोल रहा हूं, जब हम ये काम कर लेते हैं कि हजारों लाखों पिक्चर, कुछ अच्छी खराब पिक्चर थी, और उसमें से एक पिक्चर हमने कम से कम जो सबसे बढ़िया है उसको निकालने का प्रयास किया और माना कि वो हो गया, तो मैंने कहा अब हमारा कंसंट्रेशन बढ़। ये तो अंदर का बात हुआ, लेकिन इससे एक फायदा मालूम, ध्यान से सुनो। अब हो क्या रहा है? जो दिमाग के अंदर हम सोचते हैं, यानी हमारे दिमाग के अंदर जो चित्र बनते हैं, फाइनल, अंतिम, वही बाहर दिखाई, समझ में आ गया ना? क्या बोला? जो अंतिम रूप से हम दिमाग में चित्र बनाते हैं, सोचते हैं, अंतिम रूप से वही बाहर प्रकट, और वही हमारी दुनिया। बोलिए ना, वही हमारी दुनिया। क्या बोला? वही हमारी दुनिया। अब देखो इसको, मैंने कहा अपने लिए, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी, जहां पर जिस दिन जो भी हुआ है ना, अभी तक ये नहीं बोलूंगा तो अलग अलग पिक्चर हैं, कभी खट्टा कभी मीठा, किसी को देख के सुन के साथ करके कड़वा लगा, खट्टा लगा, ये एक्सपीरियंस है सभी का। पर जब मैं ये बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं गणित, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तमाम सब्जेक्ट का उपयोग कर रहा हूं। जब मैं बोलूंगा मेरी जिंदगी में जो कुछ आया, जो घटनाएं जो मैंने किया, जो मुझे मेरे अंदर आया,
उस सब ने मुझे एक प्रोफेसर बना दिया, डांसर बना दिया, मुझे प्रिंसिपल बना दिया, मुझे टीचर बना दिया, है ना? है ना? तो प्यारे बच्चों बताओ, मैंने क्या किया होगा? हजारों लाखों चीजें अनुभव मेरे पास थे, उन सब में से मैंने एक पिक्चर छांट ली। समझ में आ गया? सेलेक्ट कर दी ना? सेलेक्ट कर दी ना? एक पिक्चर कितने में से? हजारों लाखों करोड़ों में से। तो कैसे इसको निकालेंगे? जब हम ध्यान देंगे। और ध्यान ऐसे करके नहीं होगा, बाहर ध्यान ऐसे करके नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे अंदर है, मेरे और उसमें से मुझे एक निकालना है। ऐसे करके निकल जाएगी वो पिक्चर। कैसे करके निकलेगी? आंखें, वेरी गुड। कैसे? और कहीं बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं, तब जाके मैं उस पिक्चर को निकाल पाऊं। यही तो क्या होगा आपने अभी। अब जब वो पिक्चर बन गई लास्ट में, अंतिम बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत, तो अब हमें बाहर भी वही, मेरे दिमाग में गलत चित्र बन गया, माना थोड़ी देर के लिए अंतिम। उन्होंने कैसे कह दिया मेरे को गाली क्यों दी उन्होंने, मुझे बुद्धा क्यों का, लास्ट पिक्चर बन गई, माना ये। तो जब भी वो व्यक्ति दिखाई देगा, अब आने वाला है वो, सबसे पहले वो आज भी वो मुझे झगड़ा करने वाला है ना। होता है कि नहीं होता ऐसा? किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? लास्ट, पहले मेरा दोस्त था और लास्ट दिन क्या हुआ मालूम? थोड़ा बाद में तू मैं हो गई, लड़ाई हो गई। और पहले तो फास्ट फ्रेंड था और लास्ट दिन आज से एक हफ्ते पहले थोड़ा तू मैं लड़ाई हो गई हमारी। अब वो फिर दिखाई दिया, फिर आने लग गया। आज भी मेरे उसके साथ में कुछ कुछ होने वाला है। आज वो जरूर मुझे कुछ कहने वाला होगा। और बाद में जैसे आया मेरा गुस्सा और तेज फिर आ गया। अब जैसे नजदीक आया, हेलो नेगी सर, ये आपको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। अरे मैं साल पहले, क्योंकि मैं उसी पढ़ाई को करता हूं, पूरा रिसर्च पर ही आधारित होता है। 15-20 सालों से मैं केवल वही पढ़ रहा हूं जो दुनिया में माइंड के अंदर तेज कैसे बनता है, उसी पर पढ़ रहा हूं, उसी का विद्यार्थी हूं। तो वहां पर एक खोज हुई है। उन्होंने कहा, जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, एक करके भी दिखाता हूं, फिर मैं बताऊंगा उस रिसर्च ने क्या कहा। पहले मैं प्रयोग कर रहा हूं, पहले ध्यान देखो। अभी हम सब के सामने एक सूचना आ रही है ऊपर से, आवाज। आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिन के 1 बजे जबकि कड़ाके की धूप होगी, कड़ाके की, आपको इस चोटी के ऊपर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर नंगे पांव जाना है, वो भी 1 घंटे में। क्या हुआ? ये सन्नाटा क्यों? हाँ, क्या देख रहा हूं मैं, तो आपको जैसे डर लग रहा होगा। हो ना, मेरी बारी, मेरी भी हो रही है। आप आपसे नहीं, मेरी भी हो रही है ना? क्योंकि हम सबकी ये, बोलो, हम सबकी, हाँ, सोच मीन्स हमारी, बोलो शाबाश, आदत है। हम सबकी आदत है कि बड़ा काम नहीं और कभी नहीं, और मैंने तो कभी भी, और मैं ही, और इतना बड़ा काम, लोग नंगे पांव जाऊंगा तो लोग क्या? हाँ, वेरी गुड। अब देखिए जरा साइंस का नजरिए से क्या कह रहा है साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, उन पर नजर डालते हैं। ध्यान दो कितना है। मैंने कभी नहीं किया, इनर्शिया को बढ़ा दिया, जड़त्व तो बढ़ रहा है। मैं ही क्यों? फ्रिक्शनल घर्षण बल बढ़ा दिया। और समझ में? और लोग क्या बोलेंगे?
प्रतिरोध बल बढ़ गया और जो क्षमताएं थी मेरे अंदर करने का, क्या पता मैं कर लेता, वो क्षमताएं भी, बोलो ना, आपको देख रहा था मैं, दब गई थी ना। ये कठिन और तमाम सारे प्रश्न चल रहे थे। मैंने सही पहचाना कि नहीं पहचाना? नहीं, मेरे साथ में हो रहा है, आपके साथ में नहीं हो रहा हो, ये हकीकत है। Yes, sir. समझ लिया आपने? Yes, sir. ओके। कुल मिला के मेरी बात है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे साथ में तो सच में ये हुआ। और जब एक साधारण व्यक्ति हम होते हैं, जैसे दिन भर टाइम पास करने वाले, कुछ खास नहीं करना है जिंदगी में, जैसे चल रहा है, चलने दो, अरे चलो चलो, साधारण की बात कर रहा हूँ, उसका उत्तर होगा मैं नहीं, मैं वहाँ बिल्कुल भी। और जो क्षमताएं थी उनको मैंने जो सोचा वही क्षमताएं हुई। मेरी क्षमताएं ना कहने पर, बोलो, दब गई या खत्म या कम तो हो ही गई, है ना? है ना? yes, इसका नाम होता है नोसीबो इफेक्ट। नोसीबो इफेक्ट क्या बोला मैंने? माने मेरे बस का, क्या बोलते हैं उसको? नोसीबो इफेक्ट। पढ़ना इसको आप, उसमें आपके पास तो नेट है, ऐसी चीजें पढ़ो ना आप। नोसीबो मेरे बस का, तो ये केवल शब्द या सोच नहीं है, इससे क्षमताएं भी कमजोर, तो हम केवल कहते नहीं हैं बल्कि उसका असर भी। परम सम्मानित प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षागण, प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। मैंने विद्यालय के बारे में सुना था बहुत पहले से, लेकिन आज यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बच्चों भी आपने माइंड साइंस के बारे में जानकारी ले ली है। मैं भी इस कार्यक्रम से कई सालों से जुड़ी हूँ और मुझे इसके बहुत फायदे हुए हैं। ये मन का विज्ञान हमारी सोच बढ़ाता है, इससे हमारा व्यवहार बेहतर होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारी शारीरिक मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं। लेकिन जब मानसिक क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डर, फोबिया, चिंता, घबराहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झिझक आदि। ये सब हम मानसिक मन के विज्ञान से दूर कर सकते हैं। जैसे गुस्सा करने से हमारा लीवर कमजोर होने की संभावना होती है, दुखी होने से हमारे फेफड़े कमजोर होने की संभावना होती है, डर से किडनी कमजोर हो जाती है, तनाव से ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की संभावना होती है। ये हमारे साइकोसोमेटिक चीज में आते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, सुबह शाम कहते हैं कितनी मात्रा में लेना है, उसे कहते हैं डोज। ऐसे हमारे शरीर में बनता है एमडोज। एम फॉर माइंड, डी फॉर डोपामिन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन, ई फॉर एंडोर्फिन्स। ये है बायोकेमिकल हार्मोन्स के। सबसे पहले बात करती हूँ एंडोर्फिन्स की। एंडोर्फिन्स हमें संगीत सुनने, व्यायाम करने और योगा करने से मिलता है। लेकिन हम कैसे और अचीव है एंडोर्फिन्स को? हमको जो कुछ मिला है प्रकृति से, घर परिवार है, हमारा ग्रुप है, भाई बहन है, मम्मी पापा, अपना विद्यालय, टीचर, किताबें जो है उसको हम दिल से स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स बायोकेमिकल्स बढ़ेगा और एक पेन किलर में काम करता है, यानी कि दर्द कम करता है। दूसरा है सेरोटोनिन, ये हमें अफर्मेशन करने से मिलता है। तो अफर्मेशन करने में हमको अपने लिए अच्छी अच्छी बातें बोलनी होती हैं। तो मन की शक्ति बढ़ाने के लिए आप मंत्र सुनना चाहोगे तो आप आज के मंत्र के साथ बोलिए, जैसे मैं बोलूँगी। बोलिए, आज का दिन मेरे लिए खास है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं होशियार हूँ। आंखें खोलिए। ये कब बोलना है? जब सो उठते हैं बिस्तर में, आंखें बंद करके 5 बार बोलना है। उस समय क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग अल्फा स्टेज पर होता है और सारी बातें हमारे दिमाग में छप जाती हैं। ये और भी आप अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। आप जैसे बोलेंगे होशियार है, वैसे हमको हमारा दिमाग काम कर बोला ना कि क्षमताएं बढ़ती हैं।
तो ऐसे ही जब हम अपने काम को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है हमें, चाहे घर में हो चाहे विद्यालय में हो, तो हम उसको निभा देते हैं। हमारे अंदर डोपामिन रसायन बढ़ता है, एक खुशी का रसायन है, और जब हम टीम भावना से काम कर लेते हैं हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, प्यार करता है। ऐसे ही जब हम अपने मूड खराब होता है तो हम मन की शक्ति से कैसे उसको बदल सकते हैं, इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक परिवार था, मम्मी पापा भाई बहन फिर दादाजी थे। तो दादाजी बच्चे के साथ खेल रहे थे। एक दिन दादाजी उदास बैठे हुए थे और दादी की चित्र देख रहे थे, दादी दीदी। तो बच्चा गया सामने, दादाजी मेरे साथ खेलो ना। तो दादाजी चुपचाप गए, नहीं खेला उनके साथ। तो बच्चा उदास होकर के मम्मी के पास गया, मम्मी दादा तो मेरे साथ खेलते हैं, लेकिन इस समय दादी को देख रहे थे चित्र में और मेरे साथ बात की क्या बात होगी। मम्मी समझ गई कि यार दादाजी को उठी हुई है। तो मम्मी ने बोला बेटे दादा जी के पास जाना, ऐसे बोला दादाजी आपकी शादी भी तो क्या हुआ था। जैसे दादाजी ने सुना उनका मूड चेंज हो गया, क्योंकि दादा अपनी शादी के बारे में वो घटना याद करने लगे, खुशियाँ होने लगी, मतलब तो उनका मूड चेंज हो गया। तो खुश होने लगे, तब उसके साथ खेलने लगे। उन्होंने ऐसा सवाल, हाँ बच्चा जब हम किसी का मूड खराब होता है तो हमको उस समय अपनी खुशी के पल याद करने हैं और हम अपना मूड चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे मैं आपके उज्जवल भविष्य कामना करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। इमेजिन कर पाता हूँ कि मतलब मैं जैसे रियलिस्टिक में हो रहा है वैसे देख पाता हूँ। जैसे कि सर ने कोई सवाल बताया, भले मैं उस टाइम नहीं समझ पाया, अब वो पेपर में सर ने समझाया था तो मेरे माइंड में वो पूरा का पूरा पेपर आ जाता है उस टाइम, और कौन सा स्टेप किस टाइम पे होता है, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन कई बार इसी विजुअलाइजेशन के कारण मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। वेरी गुड, आपका सुनना क्या है? अभिनव, आपने अच्छा क्वेश्चन किया मुझे, और मैं सचमुच बताऊं आपको तो मैं इसी के लिए आता हूँ कॉलेज में कि बच्चे मुझे क्वेश्चन करें। ये थ्योरी तो खैर अपनी जगह है, ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके अंदर जो चल रहा है कि आप विजुअल क्षमताओं का, विजुअलाइजेशन का उतना ही उपयोग करो जितनी ज़रूरत है ना। तो समय के लिए यहाँ पर आपको टाइम का मैनेजमेंट सीखना होगा, क्योंकि देखिए अगर हमारी रोटी खाने की 3 रोटी या 4 रोटी खाने की आदत है और हम 6 खाएंगे तो अपच हो जाएगा। या ऐसे ही हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें जो पढ़ाई का एक्चुअल टाइम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीरियड 45 मिनट के क्यों रखे जाते हैं। हमारे ब्रेन की जो मैक्सिमम माइंड की जो सबसे बड़ी क्षमता है, टोटल सबसे पावरफुल, किसी भी चीज़ को दुनिया का कितनी भी ब्यूटीफुल, कितनी भी बड़ी पावर, कितना अच्छा संगीत क्यों ना हो, उसको देखने की हमारे अंदर जो क्षमता होती है 22.5 मिनट, 22.5। बाकी क्या है कि और चीज़ें होती हैं उसके बाद, उसकी जो कैपेसिटी है हर एक जनरल माइंड की कह रहा हूँ मैं, उसका कम ज़्यादा कर सकते हैं प्रैक्टिस के अनुसार, पर एक सामान्य दिमाग 22.5 मिनट तक मैक्सिमम अच्छा सा बेहतर ऑप्टिमाइज वे में काम करता है। तो उसका कैसे उपयोग करेंगे हम, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको थोड़ा पहले समझना पड़ेगा कि विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में फर्क क्या है। जो आप विजुअलाइजेशन वर्ड कह रहे हो उसको ठीक से समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपके घर के बाहर गया और आपने बोला सर मेरे घर में बताइए तो क्या क्या हो सकता है, बताइए मेरे घर के विषय में, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपकी कुछ किताबें भी होंगी, मैंने देखा नहीं है पर मैं अंदाज लगाऊंगा अच्छा ये भी होगा, क्योंकि आप अच्छे विद्यार्थी तो आपके घर में पढ़ने का वातावरण, तो मैं कुछ देखूंगा वहाँ पे कि एक टेबल तो होगी, एक पढ़ने का होगा, बेड होंगी, ये मैं गेस करूँगा। इसको कहते हैं इमेजिनेशन। जो मुझे पता नहीं पर मैं अपने दिमाग को दौड़ा रहा, राइट। और आजकल ये जो आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यही कर रही है, नए प्रयोग, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर पड़ता है। दूसरा है जिसको आप अभी इसको विजुअलाइजेशन करें, इसको ये इमेजिनेशन है। अब विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं, जो चीज़ हमको आती है बार बार उससे गहराई से बात करना, यानी उसको फील करना। किसी चीज़ को बार 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 करने का मतलब है थोड़ा बड़ी टाइम का मिला, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फॉर माइंड, जितनी बार रिपीट करेंगे वो मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि बाद में फीलिंग बन जाता है। माइंड का प्रोसेस अलग है, जैसे कंप्यूटर काम करता है वैसे करता है, मैं ये बता नहीं पाया आपको। तो विजुअलाइजेशन आप मैं कैसे करूँगा, आपने कहा साहब कि अपने घर के बाहर खड़े होकर के अपने घर के विषय में बताओ। अब आपने लिए तो मुझे तो अपना घर का पता है, मैं बताऊँगा सब चीज और ब्रेक के साथ में बताऊँ जो मुझे पता है, जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, राइट। वो था इमेजिनेशन, और ये है ध्यान देना है, ये बहुत अच्छे टर्म है, जिंदगी खिल जाती है इन चीज़ों को सुन करके।
इमेजिनेशन नया, और ये काम जो विजुअलाइजेशन का ये गूगल कर रही है शाम को, इन्हीं में से उठा करके वो नई चीज प्रस्तुत करती, इन्हीं में से। और वो कर रही है सॉफ्टवेयर, माइक्रो सॉफ्टवेयर नया काम कर रही है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको, जब आप पढ़ाई के बैठते हो, जैसे अभी आप खेल रहे थे और आपको ध्यान आया कि मुझे पढ़ना था, मैथ्स फिजिक्स या कोई पढ़ना था, दिमाग में ख्याल आया, कैसे आया, टीचर के कहने पे, मम्मी पापा के, फ्रेंड को देखकर या खुद आया, काम कर रही मुझे पढ़ना था, आज मेरे पास 2 घंटे में अभी 1 घंटा है और ये मेरी जगह जहाँ पर आप बैठते ही है ना, बैठे आप घर के अंदर। अब खुले आपकी किताब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने प्रैक्टिकल किए हैं, 40 साल तक मैं यही कर रहा था। उसके बाद हम सभी की आदत होती है सीधे किताब पढ़ लेना। तो जो बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, हमारे शरीर गणित कैसे हमारे अंदर लगता है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। क्योंकि अभी हम सीधे पढ़ने लगे, जब कितनी भी अच्छी किताब क्यों नहीं है, पसंदीदा क्यों नहीं, लेकिन हम सीधे पढ़ लेते हैं। इसमें डायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स, सॉरी बायोमैकेनिक्स का मैं उपयोग करता हूँ, लेकिन मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ। सीधे पढ़ना ठीक नहीं है, इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं कर पा रहे। केमिस्ट्री के साथ आपको बताते हुए केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते होंगे। इक्विलिब्रियम में क्या है कि पहले हमने आपको नल एंड हाइट स्थिति में नहीं किया, तो बाहर का आपको बाहर नहीं छोड़ा, पिछले हमारे काम में चलता है और वो डिस्टर्बेंस करता है। भले आप पढ़ना चाहते हो, तो अभी पढ़ने तो बैठ के इंटेंशन के साथ में, तीव्रता के साथ में पढ़ने लगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड जो बड़ा माइंड होता है, उसमें तो कुछ नेगेटिव बाहर की चीजें अभी अभी जो घटना में वो चल रही हैं। अब जो पढ़ रहे हैं और जो बाहर में अभी हुआ, उनके बीच में एक लड़ाई, युद्ध होने लगता है, द्वंद्व होने लगता है, क्योंकि वो इसकी तुलना में 10,000 गुना भारी होता है, वो जीत जाता है। और आप फिर ध्यान लगाते हुए भी, कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, कितने भी अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं है, कितने भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, थोड़ा लगता है उसके बाद वो अगर डोमिनेट हो गया तो आपका ध्यान हुआ, राइट। ये प्रोसेस जानिए आप साइंस का। फिर आपने कहा नहीं, फिर तो मुझे पढ़ना, फिर दोबारा कर दिया, फिर होगा, और ये होता रहता है। आप समझ गए क्यों हो रहा है, आपने बाहर वाले को पहले खत्म नहीं किया, वो डोमिनेट कर रहा है। तो अब क्या करना है आपको, ये तो छोड़िए, अब आपको सबसे सिचुएशन वही है, जगह वही, किताब वही है। पहले आपने किताब को पढ़ना नहीं है, रखिए किताब, और हमारी सोच एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी। आप उस एनर्जी का यूज करेंगे, दर्शन करिए इसका। ये किताब 1 घंटे तक मेरे लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा किताब है, तो समझ, पर इसमें बाउंड्री खींच दी। ये बाउंड्री खींच रहा है मैथमेटिक्स में, ये बाउंड्री खींच रहा है। आप मजा क्या करेंगे, ठीक से बोलेंगे, अब आपके पापा आवाज बेटा आपको कम सुनाएंगे, डिस्टर्ब नहीं होगा, ये पक्का। दूसरी चीज आपको करनी है, ये किताब मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी के कारण इस समय इसको पढ़ने सीखी, तो मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम, एनर्जी है ना, कितनी हाई एनर्जी पैदा हो गई। और तीसरी चीज आपने बाउंड्री खींच दी, तीसरी चीज आपने बोला कि यह मेरी पसंदीदा किताब है, इस समय केवल और केवल मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, केवल 3 सेकंड में जाता हूं। अब बेटा इसको करके देखिए, ऑर्डर कर दिया अपने माइंड को, ठीक वैसे जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम नहीं करते वैसे माइंड में कर दिया आपने। अब मजा क्या है, बार बार करेंगे, प्लीज इसको 10 मिनट तक करिए और फिर आप 11वें दिन मुझे फोन कर देखिए।